Dear students, this class is again for class 12 and today we will go through the NCERT text of the chapter on the face of it. So this video is a simplification of the text and we'll discuss about the text of this particular play which is in your syllabus, and we will read the chapter directly from the NCERT book. I am presenting you the PDF of the book. Okay, so if you do have the book, you can follow with me along with the video. Okay, so this class will be actually bilingual. I will sometimes use Hindi so that you can understand the chapter better. Okay, so let's start with this chapter. In the part 1 we have already discussed about that this particular story, or rather this particular small play, that there are two characters here. One is Mr. Lamb and another is Dairy. Here Mr. Lamb is an old man having a broken leg or probably a leg missing. Okay, and he is a physically impaired person, and Dairy is a child who is having a face half of which is burnt because of acid. Now Mr. Lamb, so the drama starts like this. Mr. Lamb suddenly says, mind the apples, मतलब सेवों का ध्यान रखना. Okay, so in that garden there are apples which you will come to know that those are wild apples, particularly called crab apples. Okay, so Mr. Lamb suddenly says that mind those apples. Probably those apples are lying on the ground. Okay, it has dropped from the tree and those apples are on the ground, and he says that. Now Dairy, that boy, says, what? Who's that? Who's there? कौन है? किसने कहा? Okay, so he was startled. डेरी सरप्राइज हो गया कि कौन है. मतलब डेरी सोचा था कि हम जिस गार्डन के अंदर आ रहे हैं इसमें कोई नहीं है. इनसाइड दैट गार्डन नो वन इज देयर. बट वेन मिस्टर लैम सडनली स्पोक समथिंग from behind a bush. Okay, so Mr. Lamb was doing something, enjoying the garden probably, और वो झाड़ियों के पीछे थे. तो वो जब अचानक बोलें कि सेबों का ध्यान रखना. ओके, सो डेरी वॉज वेरी startled, he was very surprised. Mr. Lamb then says, lamb's my name, mind the apples, crab apples those are, windfalls in the long grass you could reap. So मिस्टर लैम्ब अभी बोल रहे हैं कि मेरा नाम लैम्ब है और सेबों का ध्यान रखना. जंगली सेब लंबे घास में हवा से उड़कर गिरे हुए हैं, तुम ठोकर खाकर लुढ़क सकते हो. मतलब इफ़ यू स्टेप ऑन द राइप एप्पल्स विच आर लाइंग ऑन द ग्रास एंड यू वोंट बी एबल टू सी देम, सो इफ़ यू स्टेप ऑन दोज crab apples you could trip and fall. मतलब तुम फिसल के गिर सकते हो, लुढ़क सकते हो. ओके, सो तो डेरी अब क्या बोल रहे हैं. डेरी सेज, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबॉडी हियर. मतलब हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई रहते हैं. हम सोचे थे ये जगह खाली है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है. मतलब इस गार्डन पे कोई है ये डेरी को पता नहीं था. तो डेरी वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, ओके, दैट समवन इज देयर इन दिस गार्डन. सो देखो मिस्टर लैम्ब इज सेइंग देन, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, what are you afraid of, boy? That's all right. That's all right. I am here. What are you afraid of, boy? That's all right. मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, तुम किससे डर रहे हो लड़के, सब ठीक है. मतलब why are you fearing? Okay, what are you afraid of here? It's okay that if you have entered this garden. Dairy then says,
आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। सो डेरी बोल रहा अब कि हम सोचे थे ना कि ये घर, ये बगीचा जो भी है ये खाली है। मिस्टर लैम देन सेज, देखो हियर मिस्टर लैम इज इन अ वेरी जॉली मूड, बहुत कैजुअल मूड में है और थोड़ा मजाक भी कर रहे हैं। बोला कि सो इट इज, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज एम्प्टी until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop a day like this. Beautiful day, not a day to be indoors. तो मिस्टर लैम यहाँ बोल रहे हैं ऐसा ही है क्योंकि मैं उद्यान में हूँ। इट्स नॉर्मल, वो गार्डन पे है, ये खाली है तो मतलब घर खाली तो होगा ही। अगर हम अपने गार्डन में रहेंगे तो घर खाली है। जब तक मैं वापस अंदर जाऊं, मतलब जब तक वो वापस अंदर नहीं जाते हैं तब तक घर खाली है। इस बीच में यहाँ बाहर हूँ और यहाँ रुकने की संभावना है। अर्थात मिस्टर लैम सेज कि हम इफ़ ही इज़ आउटसाइड इन द गार्डन एंड इन द मीन टाइम ही लाइक्स टू स्टॉप देयर, ही लाइक्स टू स्टे देयर इन द गार्डन। ऐसा दिन, ऐसा सुहावना दिन अंदर रहने के दिन नहीं है। मतलब अ डे सच अ ब्यूटिफुल डे इज़ नॉट टू स्टे इन साइड। इट्स क्वाइट नॉर्मल अगर दिन बहुत सुंदर हो। ओके, जैसे इट इज़ नाउ अ विंटर सीजन। ओके, नाउ इफ़ यू हैव अ वेरी क्लियर स्काई, इफ़ यू डोंट हैव फॉग, ओके, and it's bit less colder, okay, you enjoy the sunlight, then you will enjoy that day. सो तुम लोग मतलब आप लोग को लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत बाहर ही रुक जाते हैं। तो उसी तरह मिस्टर लैम इज ऑल्सो आउटसाइड हिज हाउस। तो डेरी सडनली सेज, मतलब वो घबरा गया, पैनिक, देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना पैनिक। सो डेरी थोड़ा सा घबरा गया एंड ही सेज आई हैव गॉट टू गो, हमें जाना है। ओके, तो मतलब मैं चलता हूँ, हमको जाना है अभी। सो डेरी समहाउ is panicked. Now, in the introduction class, I have already told you that Derry, this boy, he does not like people. इसे किसी से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। Why? Because he knows that whenever he will be meeting with someone, that particular person will be sympathizing with him. उसको उसका वो जला हुआ जो चेहरा है उसके बारे में पूछेंगे, वो उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकता है, isn't it? And that person will pretend as if he is showing a lot of sympathy towards Derry. तो इससे बेहतर है कि वो अकेले रहे। So Derry, in search of some isolation, in search of some seclusion, he wanted to enter into that garden. So Mr. Lamb, देखो तो डेरी इसीलिए बोल रहा है कि हमें चलना है। सो मिस्टर लैम सेज नॉट ऑन माई अकाउंट, मतलब मेरी वजह से नहीं। आप अगर जा रहे हो तो वो अपने कारण से जा रहे हैं। आप अगर यहाँ से जा रहे हैं तो अपने कारण से जा रहे हैं, मेरे वजह से नहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मतलब मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं कि मेरे उद्यान में, मेरे बगीचा में, मेरे गार्डन में कोई आए या कोई जाए। ओके, द गेट्स ऑलवेज ओपन, मतलब ये गेट हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, मगर आप किसी कारण से, केवल आप ही किसी कारण से उद्यान की जो दीवार है उस पर चढ़कर अंदर आए हैं, लेकिन मेरा गेट खुला हुआ था। तो देखो अब डेरी देन सेज एंग्री, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एंग्री, यू आर वॉचिंग मी, आप हमें देख रहे थे, मतलब यहाँ पे देख रहे थे मतलब ना नज़र रख रहे थे कि यू आर स्टिल देयर, प्रेजेंट देयर, एंड यू आर वॉचिंग मी, आप नज़र रख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ एज डेरी सेज दैट यू आर वॉचिंग मी, मतलब आप मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे। मिस्टर लैम सेड आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सीट हेयर, आई लाइक सिटिंग। सो
फिर देखो मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें देखा था परंतु गेट खुला है, सबका स्वागत भी है, तुम्हारा स्वागत है, मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ बैठना मुझे अच्छा लगता है। मतलब मिस्टर लैम इज़ वेरी कैजुअल टू डेरीज एंगर। मतलब डेरी हैज़ बिकम एंग्री कि आप नज़र रख रहे थे एंड यू डिडंट से अ वर्ड अबाउट इट। ओके, यू आर साइलेंटली वॉचिंग मी। डेरी को ये चीज़ बहुत ख़राब लगा, बट स्टिल मिस्टर लैम इज़ वेरी कैजुअल टूवर्ड्स डेरी एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड। डेरी देन सेज आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। देखो यहाँ पे ना एक एपोस्ट्रॉफी डी लिखा हुआ है। ओके, सो इट मीन्स दैट आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, हम यहाँ पे कुछ चोरी करने नहीं आए हैं। मिस्टर लैम देन सेज कि नो द यंग लैड्स स्टिल, देखो बोल रहे हैं ना कि द यंग लैड्स स्टिल स्क्रम्प द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। तो मिस्टर लैम इज सेइंग कि नहीं नहीं, जो छोटे बच्चे चुराते हैं, जो स्वादिष्ट सेव चुराते, वो क्या करते हैं, स्वादिष्ट जो सेव गिरा हुआ रहता है उसको चुराते हैं, तुम इतने छोटे नहीं हो। ओके, सो दिस द स्मॉल, जो बच्चे यहाँ आते हैं उस उद्यान में, उस बगीचा में, वो चुराते हैं, आप तो उतने छोटे नहीं हैं। Derry then says, I just wanted to come in into the garden. So Derry has a kind of feeling here that probably Mr. Lamb is thinking that Derry has come here to steal something. मतलब डेरी को ना बार बार लग रहा है कि हम उनके जो उद्यान है, जो बगीचा है, वहाँ तो हम घुस गए हैं, लेकिन ये जो मिस्टर लैम ये सोच रहे हैं शायद कि हम कुछ चोरी करना है, क्योंकि ये क्या किए ना, दीवार टपक के अंदर आए थे। He has not come through the gate. Mr. Lamb then says, देखो बोल रहे हैं, कितना कैजुअली बोल रहे हैं कि सो यू डिड, तो ठीक है, आपको आने का मन था तो आप आए हैं। हियर वी आर देन, और हम लोग अभी यहाँ हैं, तो क्या बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेरी अब बोल रहे हैं, यू डोंट नो हु आई एम। तो देखो डेरी को अब लगा कि ये जो मिस्टर लैम है ये तो उनके डेरी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। ओके, सो ही सेज कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और व्हाट यू आर डूइंग इज दैट विदाउट नोइंग मी यू आर एक्सेप्टिंग मी इन योर गार्डन। ओके, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। आप जिसको नहीं जानते होंगे उनको आप अपने घर के आंगन में आने नहीं देंगे, आपके अपने जो बगीचा है, उद्यान है, उसमें आप आने नहीं देंगे, यही नॉर्मल है। बट टू डेरी दिस थिंग कि मिस्टर लैम जो ये कैजुअल अप्रोच लेके डेरी को इतना वेलकमिंग मूव दिखा रहे हैं, ओके, इतना वेलकम कर रहे हैं डेरी का, ये ना डेरी को बहुत अजीब सा लगा। ही इज़ वेरी मच पजल्ड अबाउट इट। तो वो बोल रहे हैं ना कि आप तो जानते ही नहीं हैं हम कौन हैं। तो मिस्टर लैम अगेन वेरी कैजुअली, देखो कितना कैजुअल अप्रोच लेके बोल रहे हैं, अ बॉय 13 और सो, मतलब आप एक बच्चे हैं, मतलब आप एक लड़के हैं और बालक हैं आप, और आपका कुछ 13 साल के लगभग होंगे आप, ठीक है। देखो यहाँ पे डेरी बोल रहे हैं 14, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। तो डेरी तब यहाँ पे एफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट ऑफ 13 ईयर्स बट आई एम 14 ईयर्स एंड आई हैव गॉट टू गो नाउ, हमें अब जाना चाहिए। डेरी इज़ नॉट लाइकिंग द कंपनी ऑफ मिस्टर लैम इन द बिगिनिंग। तो मिस्टर लैम का जो कंपनी था वो डेरी को अभी फ़िलहाल पसंद नहीं आ रहा है, एंड ही सेज गुड बाय। सो मिस्टर लैम देन सेज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। तो मिस्टर लैम बोले कि डर क्यों रहे हैं आप, इसमें डरने वाली बात है ही नहीं, यहाँ तो हम हैं एक बूढ़े आदमी और ये एक उद्यान है, तो वाई आर यू बीइंग अफ्रेड। तो डेरी बोल रहे हैं बट आई एम नॉट अफ्रेड। तो डेरी बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं डरते हैं,
मतलब आई एम नॉट अफ्रेड, ओके, लेकिन मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं डरा नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। तो वो थोड़ा रुक के बोले कि पीपल आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ मी, वाई, बिकॉज डेरी हैज़ अ बर्न फेस, यू नो इट ऑलरेडी, ओके, एंड वेन एवर पीपल लुक एट हिम दे आर अफ्रेड अबाउट वट, अबाउट द फेट ऑफ डेरी, कि इसका क्या होगा, कौन इसको नौकरी देगा, ये सोसाइटी में रहेगा कैसे, जिएगा कैसे, इस तरह का सोच लोगों में रहता है। एंड वेन एवर दे टॉक टू डेरी, डेरी को पता लगता है कि नहीं ये इस तरह से सोच रहे हैं। मिस्टर लैम सेड वाई शुड दैट बी, क्यों लोग आपसे डरेंगे? डेरी सेज एवरी वन इज, सब कोई डरते हैं। इट डज नॉट मैटर हु दे आर और वट दे से, ये मैटर नहीं करते हैं कि कौन है वो, क्या कहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। या फिर वो कैसे दिखते हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। या फिर वो कैसे दिखावा करते हैं, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मतलब आप भले जितना दिखावा कीजिए, आप दिखने में जैसे, जितना सिंपल इनोसेंट जैसे भी लगे, आप जितना इनोसेंटली बात कर रहे हैं, जो भी करें, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि लोग हमसे डरते हैं। एंड सेम इज़ द केस इन केस ऑफ यू ऑल्सो। तो मिस्टर लैम को वो बोल रहे हैं ना कि आप में भी वही हम देख सकते हैं अभी। मिस्टर लैम सी व्हाट, क्या देखते हो आप? डेरी व्हाट दे थिंक, उन लोग क्या सोचते हैं, ये हम देखते हैं। देखो दिस पार्ट इज़ ना वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज हियर डेरी हैज़ बिल्ट ऑफ अ काइंड ऑफ शील्ड, अ काइंड ऑफ वॉल विद इन हिज पर्सनल स्पेस। वो ना जब भी, जैसे लोग डेरी को देखते हुए जज करना शुरू कर देते हैं कि इसका क्या होगा, कैसे हो गया, व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम, इसका नसीब में अब क्या है, ओके, हाउ विल ही लीव हिज लाइफ, हाउ विल ही कम टू द सोसाइटी। लोग जैसे डेरी को जज करते हैं, डेरी भी उसी तरह ना सेम टू सेम फीडबैक देते हैं। वो जब भी किसी से मिलने जाते हैं या फिर किसी से मिल लेते हैं एक्सीडेंटली, ही ऑल्सो बिगिन्स टू जज दैट पर्टिकुलर पर्सन कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इतना जजमेंट डेरी शुरू कर देते हैं। मिस्टर लैम देन सेज, देखो अब मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं। ही सेज व्हाट डू दे थिंक देन, बोल रहे हैं कि क्या सोचते हैं लोग। तो देखो, तो बोले तो क्या सोचते हैं लोग, ये बताओ। तो नाउ डेरी सेज यू थिंक हियर्स अ बॉय, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I'm not poor. Underneath you were afraid anybody would be. I am. Then I look at the mirror and see it, I am afraid of me. See the terrible thought of Derry, that Derry is nurturing inside himself. ओके क्या सोचते हैं डेरी, डेरी का सोच यहाँ पे देखो ना एक्सप्रेस हो रहा है इन दिस, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज थॉट इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ कि डेरी सोसाइटी के बारे में या फिर वो जब भी किसी से मिलता है उनके बारे में डेरी क्या सोचते हैं। ओके इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ यू विल फाइंड इट। तो इसको आई एम ट्रांसलेटिंग दिस थिंग इनटू हिंदी। बोला कि आप सोचते हैं यहाँ एक लड़का है, आप मुझे देखते हैं और फिर मेरा चेहरा देखते हैं और सोचते हैं बहुत ख़राब है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है, मैंने इससे मतलब इससे ख़राब, दैट्स द अगलीस्ट थिंग यू एवर सॉ, इससे ख़राब आप कभी देखे ही नहीं हो। ओके आप सोचते हैं बेचारा लड़का, लेकिन देखो यहाँ पे ना एक टर्म है पुअर बॉय, पुअर बॉय मीन्स बेचारा लड़का। ओके अगलीस्ट थिंग मतलब इससे हद आप कभी नहीं देखे हैं, इससे भी ख़राब आप कभी नहीं देखे हैं। बट आई एम नॉट, हम एक बेचारा लड़का नहीं है, मैं बेचारा नहीं हूँ। अंदर से आप डरे हुए हैं, आप अंदर से ना डरते हैं, सभी डरते हैं। इवन डेरी भी जब अपने आप को आईने के सामने वो खड़ा होता है, ओके तो या फिर शीशे के सामने खड़ा होते हैं, तो वो खुद अपने आप से डर जाता है। सो थिंक हाउ टेरिबल काइंड ऑफ लाइफ डेरी इज लीडिंग। ओके दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, यू नो दैट।
MCQs विल कम, तो बस ना क्या करेंगे ना, ये वाली लाइन बस उठा के दे देंगे, आई लुक इन द मिरर एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो देन दे विल से कि हु इज़ अफ्रेड ऑफ व्हाट एंड वाई, या फिर दे देगा ऑप्शंस, दे देगा कि इसमें सोच क्या था। तो अब देखो मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं, तो डेरी सेज कि यू आर अफ्रेड ऑफ मी, ठीक है, यहाँ पे डेरी साबित कर दिया इन दिस पैराग्राफ दैट मिस्टर लैम इज अफ्रेड ऑफ डेरी। नाउ व्हाट मिस्टर लैम सेज, मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, मतलब हम आपसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ओके, आई डोंट इवन फियर अ लिटिल बिट ऑफ यू। डेरी यस, तो डेरी इज फोर्सफुली सेइंग कि नहीं आप डरते हैं, अच्छा आप डरते हैं। ओके, नेक्स्ट ही सेज लेटर ऑन, देखो अब क्या होगा, अब एक मज़ेदार चीज़ है इसमें। ओके, थिंग वेरी इंटरेस्टिंग इट इज़, लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time for year September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. तो अचानक से ना कहाँ टॉपिक था दैट मिस्टर लैम इज़ प्रोबेबली फियरिंग डेरी बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस, वहाँ से देखो टॉपिक चेंज करके सीधा आ गया क्रैब एप्पल्स वाली टॉपिक में। ओके, सो मिस्टर लैम इज सेइंग दैट कि थोड़ी देर बाद जब इट विल बी इवनिंग and I will be picking up crab apples and you can also participate with me. It's September and they are ripe and they are good for making jellies. I also make jellies from them, so you can also participate in it. देखो यहाँ पे लिखा हो ना कि you could give me a hand. It means that you can also participate with me in picking up crab apples. But Dairy is a very sensitive child. You know that these kind of children who are facing so much difficulties in their life, okay, there's so much social stigma in their life that they very quickly catch up with the person he or she is talking with. Okay, so Dairy here says what have you changed the subject for, अपने subject क्यों बदल दिए, मतलब आपने ये जो we were talking between each other, okay, विषय में जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे, why did you change it? Then he says people always do that, लोग ऐसे करते हैं अक्सर। Why don't you ask me, आप हमसे पूछे क्यों नहीं? Why do you do that? What they all do and pretend it isn't true and it isn't there. In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you don't ask me because you are afraid to. तो ये बोल रहे हैं क्या कि तुमने विषय क्यों बदल दिया, लोग हमेशा ऐसा करते हैं, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते, तुम ऐसा क्यों करते हो जैसा भी सभी करते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं जो कि ये सही नहीं और जो वहाँ है भी नहीं। मतलब लोग क्या करते हैं ना, लोग प्रिटेंड करते हैं। देखो दिस इज क्वाइट नॉर्मल ना, वेन एवर दैट पर्सन इज टॉकिंग टू अनदर पर्सन हु इज हैविंग अ डिसेबिलिटी लाइक अ बर्न फेस, सो दैट पर्सन हु इज टॉकिंग टू दैट अदर पर्सन ही विल ट्राई टू अवॉइड the fact that the other person with whom he is talking is having a burned face, मतलब उसका जो जला हुआ चेहरा है, ये सब्जेक्ट वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, यही नॉर्मल है एंड वी ऑफन डू दैट। ओके, so people often try to do that। Coming again, what have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and it isn't there? In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you don't ask me because you are afraid. तो देखो डेरी इज़ वेरी सेंसिटिव हेयर, और वो कह रहे हैं ना कि इट्स क्वाइट नॉर्मल कि जब लोग बात करते हैं ऐसे किसी मतलब डिजेबल्ड पर्सन के साथ, डिजेबल्ड नहीं बोलेंगे, दिव्यांग कहा जाता है, ओके एक्चुअली, बट ये एक हादसा हो गया है डेरी के लाइफ में विच इज़ वेरी टेरिबल फॉर हिम, ओके, फॉर हिज नॉर्मल लाइफ। तो वेन एवर वी टॉक, वेन एवर वी come to any
topic like this, we often try to avoid as if it has never happened in that person's life, मतलब उसके ज़िंदगी में ऐसा हादसा हुआ नहीं है, यही हम लोग प्रिटेंड करते हैं ताकि we can give him an opportunity to normalize the conversation. तो now Mr. Lamb, you want me to ask? Say so then. तो देखो Mr. Lamb is still very casual. Just think about it. Derry is considering Mr. Lamb as if Mr. Lamb is some other person of the society who will automatically behave with Derry like the other people who behaved with Derry in with such and such way. मतलब एक स्टीरियोटाइप फॉर्म हो गया ना कि उसी फॉर्म में डेरी अपने मन बना लिया है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो जिनसे हम बात कर रहे हैं वो यही तरीके से बात करेंगे। मतलब एक टाइम आएगा व्हेन देयर विल बी अ क्वेश्चनिंग अबाउट माय बर्न फेस, उनके जो जला हुआ चेहरा है उसके बारे में ये क्वेश्चंस आएंगे और जिससे हम बात कर रहे हैं वो उस टॉपिक को अवॉइड करने का कोशिश करेंगे। सो दैट्स हाउ डेरी इज़ यूज टू, यही डेरी का हैबिट है, मतलब ये हैबिट में बन चुका है उसका, ये इसका आदत बन गया है कि हाँ जब भी वो किसी से बात करता है तो इसी तरह बातचीत आगे बढ़ता है। तो देखो मिस्टर लैम, बट मिस्टर लैम इज टोटली डिफरेंट हियर। ही इज़ नॉट हैविंग दैट स्केप्टिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स डेरी, डेरी के प्रति ना उनका ये इस तरह का एटीट्यूड है ही नहीं, टोटली डिफरेंट एटीट्यूड है। एंड व्हाट ही इज़ डूइंग इज ही एक्चुअली इज़ वेरी कैजुअल टूवर्ड्स डेरी। He says, you want me to ask? Say so then. आप चाहते हैं कि हम आपसे पूछें तो आप बताइए क्या हुआ था। तो डेरी then says, I don't like being with people, any people. हमें किसी से बात करना ही नहीं चाहिए, हम किसी के साथ बातचीत करना एकदम पसंद नहीं करते हैं। Mr. Lamb said, I should say to look at it, I should say you got burnt in a fire. तो मिस्टर लैम्ब अभी बोल रहे हैं कि हम तो बोलेंगे कि आग से जल गया होगा शायद। Okay. Derry then says, not in fire. I got acid all down that side of my face and it burnt it all away. It ate my face up. ये मेरा चेहरा खा गया, that acid. It ate me up, और मेरा ज़िंदगी भी खा गया. And now it's like this and it won't ever be any different. और अभी से ये और कभी रिकवर नहीं करेगा और इससे कुछ अलग होगा भी नहीं, ये बदलेगा भी नहीं, जैसा हो गया और ये मेरा ज़िंदगी निगल गया। ओके, मिस्टर लैम देन सेज नो। मिस्टर लैम तब बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, नो। डेरी, अरेंट यू इंटरेस्टेड? आपको सुनने में दिलचस्पी नहीं है, मतलब रुचि नहीं है आपको इसको सुनने में। Lamb said, you are a boy who came into the garden, plenty do, I am interested in anybody. तो मिस्टर लैम अभी देखो, मिस्टर लैम इज़ नॉट गिविंग डेरी एनी स्पेशल स्टेटस, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे ना कि डेरी को थोड़ा सिंपैथी दिखाने का कोशिश करेंगे, बट मिस्टर लैम इज़ नॉट शोइंग एनी सिंपैथी टू मिस्टर लैम टू डेरी हियर। ओके, ही सेज कि लोग बहुत सा आप यहाँ पे आए हो मेरे उद्यान में, मेरे गार्डन में, और बहुत सारे बच्चे यहाँ आते भी हैं। Okay, so it's normal and I am interested in any child, any boy who comes into my garden. जो भी आते हैं हमारे साथ थोड़ा बातचीत करते हैं, हम सब में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके ये जो हादसा है इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। एनीथिंग, there's nothing God made that doesn't interest me, मतलब बोल रहे हैं ना कि भगवान ऐसा कुछ बना ही नहीं है जिसमें मेरा रुचि नहीं है। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी? बोला कि देखो वहाँ पे जो दीवार है उसके बगल में क्या दिख रहा है तुमको? बोला रबिश। रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिख रहा है? डेरी सेज जस्ट ग्रास एंड स्टाफ, वीड्स। तो डेरी बोल रहे हैं कि बस वहाँ पे कुछ देयर आर सम ग्रासेस ओवर देयर एंड वीड, कुछ घास है और कूड़ा है, जंगली पौधे भी कुछ हैं। ओके, वीड्स मीन्स जंगली पौधे। सो मिस्टर लैम सेज सम कॉल देम वीड्स इफ़ यू लाइक,
कोई कोई उसको जंगली पौधे कहेंगे, आप भी कह सकते हो। देन अ वीड गार्डन, तो उसको हम जंगली पौधे की गार्डन भी कह सकते हैं, उद्यान भी कह सकते हैं। उसका भी देयर फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, तो मतलब उसको आप जंगली पौधे का उद्यान भी कह सकते हैं। यहाँ फल है, फूल है और पेड़ है और जड़ी बूटियाँ भी है, मतलब हर्ब्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीज एंड हर्ब्स, ओके, ऑल सॉर्ट्स, सब तरह की हैं। परंतु वहाँ जंगली पौधे उगाता हूँ, मतलब ये कहते हैं कि what I do is but over there weeds I grow weeds there, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आ गया है दैट वो जंगली पौधे और हम मतलब आई डोंट केयर अबाउट देम, आई एम प्रिटी मच इंटरेस्टेड ऑन देम एंड आई एक्चुअली ग्रो देम, ग्रोइंग अ प्लांट आई ग्रो वीड्स देयर। देखो बोल रहे हैं why is one green growing plant called a weed and another a flower, where's the difference, it's all life growing same as you and me। बोल रहे हैं कि परंतु देखो एक हरा भरा बढ़ता पौधा जंगली और दूसरा फूल क्यों कहलाता है, अंतर कहाँ है इसमें, ये सबको ही जिंदा है, सबके बीच में ज़िंदगी है, लाइफ है और सबको ही बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे तुम और मैं, एज इफ यू एंड मी, हम लोग जैसे बढ़ रहे हैं उसी तरह ये सारे पौधे बढ़ रहे हैं, भले वो जंगली हो या कोई फूल देता हो या कोई फल देता हो, बट ऑल आर हैविंग लाइफ, isn't it? So this is the thought of Mr. Lamb कि that we all are same, this is the philosophy of Mr. Lamb कि we all are same, we all have life and we are growing, so we all have a right to live। आज यहाँ तक एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ इट। थैंक यू।